شوپیاں منڈی میں فروٹ ایسوسی ایشن کے الیکشن کے دوران کووڈ SOPs کی جم کر خلاف ورزی کی گئی۔ تاجروں، پھل فروش اور امیدواروں نے انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کے تمام دعووں کی قلعیں کھول کر رکھ دی ہے۔ اس حوالے سے DC شوپیاں کا کہنا ہے کہ انتخابات کرنے اور کووڈ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں ایک 80 سالہ شخص کی دریا جہلم میں گرنے سے موت واقع ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بنگر محلہ حاجن سے تعلق رکھنے والے گل محمد صبح سویرے دریا جہلم کے کنارے پر نماز فجر کے لیے وضو بنا رہا تھا، جس سے دوران پیر پھسلنے سے وہ دریا جہلم میں ڈوب گیا۔ خبر ملتے ہی پولیس نے مقامی افراد کے ساتھ مل کر تلاشی کارروائی شروع کی اور بعد میں پرنگ نامی علاقے کے قریب اس کی لاش دریا جہلم سے نکالی گئی۔ پولیس نے لاش کو اسپتال پہنچا کر قانونی لوازمات پورے کر کے لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ بانہال کے چکناڑوا علاقے میں ریچھ کے ایک حملے میں ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی ہے اور اسے ایمرجنسی اسپتال بانہال سے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ 40 سالہ جبینہ بیگم آج دوپہر اپنے گھر کے نزدیک کھیتوں میں راجما چن رہی تھی کہ ایک ریچھ اس پر حملہ آور ہوا۔ خاتون کو سر، بازو اور جسم کے دوسرے حصوں پر شدید زخم آئے۔ بانہال اسپتال میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد اسے مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ اسی دوران محکمہ وائلڈ لائف کی ایک ٹیم نے تلاشی کارروائی شروع کی۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں گریز فیسٹیول 2021 آج سے شروع ہو گیا۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ کے تعاون سے منعقد کیے گئے اس فیسٹیول کا مقصد علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینا ہے۔ پیش ہے محمد سعید کی یہ رپورٹ۔ دنیا کے چودے بھشن میں نزائے بھشن میں بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں گریز فیسٹیول 2021 کا افتتاح صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ٹورزم ڈاکٹر GN ایتو، DC بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد، فوج، پولیس، گریز کی سول انتظامیہ کے علاوہ مقامی سیاسی لیڈران بھی موجود تھے۔ گریز میں سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے منعقد کیے گئے اس فیسٹیول کے حوالے سے کچھ روز قبل ہی مختلف سرگرمیاں جاری تھیں۔ فوج، پولیس، ضلع انتظامیہ اور محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی جانب سے کار ریلی، پینٹنگ کے مقابلے، حبہ خاتون پہاڑ کی ٹریکنگ اور سائیکل ریس وغیرہ پروگرام منعقد کیے گئے۔ وادی سے تعلق رکھنے والے نامور گلوکار، سائیکلسٹ اور دیگر لوگ بھی اس گریز فیسٹیول کی تیاریوں کا حصہ بنے، جس وجہ سے گریز میں ایک جشن کا ماحول بنا رہا۔ فیسٹیول کو زیادہ سسٹینیبل بنانے کے لیے اور ایک ایسا ماڈل بنانے کے لیے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑ سکے اور ان کی اکانومی اس کے ساتھ اور زیادہ بہتر ہو سکے اور ٹورزم میپ پہ بھی گریز لایا جا سکے، اس طرح کے ایونٹس یہاں پہ کرائے گئے۔ ایگریکلچر کے اسٹال پر مجھے سیپرن دیکھنے کو ملا، تو میں نے سوچا جگیاسا کے طور پر سیپرن یہاں ہوتا ہے کیا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ پمپور سے لایا ہے۔ تو پمپور اور گریز کا ایک اپنا رشتہ ہے۔ پینڈیمک 19 کے بعد جو ٹورزم ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ ورلڈ اور ہمارے کنٹری میں اور جموں کشمیر میں بھی بالکل اسٹینڈ سلو ہو گئی تھی، یعنی کوئی ایکٹیویٹی چل نہیں پائی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گریز میں پہلی بار سیاحوں کے ریکارڈ آمد اس وقت دیکھنے کو ملی جب گریز میں شیخ عادل نامی پولیس افسر کو بحیثیت SDPO گریز تعینات کیا گیا۔ گریز میں اپنی ڈیوٹی جوائن کرتے ہی شیخ عادل نے ٹویٹر پر گو گریز کیمپین شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مہم نے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ کی صورت اختیار کی اور سینکڑوں کی تعداد میں سیاح گریز پہنچنے لگے۔ اس کے علاوہ شیخ عادل نے گریز میں بھی مقامی نوجوانوں کو متحرک کر کے پورے ماحول کو گرما دیا۔ اس مہم کی وجہ سے بالی ووڈ نے بھی گریز کے تئیں اپنی دلچسپی ظاہر کی، جبکہ ریلائنس جیو کی جانب سے گریز اور تلیل میں موبائل نیٹ ورک قائم کرنے سے پوری دنیا گریز کی چھپی خوبصورتی سے واقف ہو گئی اور یوں ان سارے عوامل سے گریز میں اس سال
सयाहत को एक नई बुलंदी अता हुई। न्यूज 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में वाटर ट्रांसपोर्ट के अहिया के लिए एक निजी कंपनी ने दरिया जहलम में तजुर्बाती असास पर बोट बस शुरू की है। बोट बस में 30 मुसाफिरीन की गुंजाइश है और ये लसजन से वीर तक चलेगी। निजी कंपनी सुकनाग इंटरप्राइजेस ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये बोट बस तमाम जदीद सहूलियात से लैस है और तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा गया है। अगर इस प्रोजेक्ट को हुकूमत की मंजूरी मिल जाती है तो लसजन से श्रीनगर रोड तक ट्रैफिक से बचने में मदद मिलेगी। इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर बॉडी यूज़ करें तो ये डिकंजेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक मेजर है जो हम कर सकते हैं अभी, क्योंकि हम उतने उस नेशन में रहते नहीं हैं कि जहाँ इतना डेवलप्ड है कि हम हाइपर लूप बना सके। अब हमारे पास तो अभी मेट्रो नहीं है, हमारे पास यही एक ज़रिया है, वाटर बॉडी है जो सस्ता हो जाएगा, थोड़ा चीपर कॉस्ट पड़ जाएगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्योंकि ये सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है वर्ल्ड में। फर्स्ट बोट विच वी हैव बस बोट विच वी हैव इंपोर्टेड, ये पहली बस बोट है जो इंपोर्ट की है। उसके बगैर इफ दिस इज सक्सेसफुल एंड द गवर्नमेंट विल टेल अस वी विल स्टार्ट इंपोर्टिंग मोर। इसके बगैर भी वी हैव फ्यू डिपार्टमेंट को हमने कुछ वी हैव गिवन देम फ्यू टैक्सी बोट्स एंड फ्यू रेस्क्यू बोट्स आल्सो एंड फ्यू एम्बुलेंस बोट्स आल्सो। उनके पास है डिपार्टमेंट के पास ऑलमोस्ट 5 or 6 बोट्स है, बट बस बोट दिस इज द फर्स्ट बस बोट एंड इफ दिस इज सक्सेसफुल वी विल बी इंपोर्टिंग मोर। लद्दाखी लिबास पहने लद्दाखी लोक गीतों पर डांस करते हुए आमिर खान और उनकी साबिक़ अहलिया किरण राव की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आमिर और उनकी टीम फिलहाल लद्दाख के गांव वाखा मुल्बिक में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रही है। आमिर और किरण राव लद्दाखी रिवायती कोस और सलमा लिबास पहने हुए हैं और वो जो रक्स पेश कर रहे हैं उसे गोम्भा समशुक कहते हैं। आमिर खान और किरण राव 15 साल एक साथ रहे, हालांकि उन्होंने 3 जुलाई को अपने तलाक का ऐलान किया है। उन्होंने अपने तलाक को नए सफ़र के आगाज से ताबीर किया है। उनका कहना है कि ये 15 साल निहायत ही खूबसूरत तजुर्बात, मसरत और कहक़ों का इश्तिराक है और हमारा रिश्ता सिर्फ एतमाद, एहतराम और मोहब्बत में बढ़ा है। उनका कहना है कि अब शौहर और बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि शरीक वालिदैन की हैसियत से एक दूसरे के ख़ानदान के लिए नए बाब की शुरुआत कर रहे हैं। करगिल में हो रही फिल्म की शूटिंग के हवाले से डीएम करगिल ने सफाई पेश की है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करगिल के वाघा मुल्बिक गांव में हो रही है। शूटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और आलूदगी फैलाने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। डीसी का कहना है कि शूटिंग अभी जारी है और किसी किस्म की कोई भी बेज़ाब्तगी नहीं हो रही है। उन्होंने इस वीडियो को बेबुनियाद करार दिया है। वाज़ेह के 2 रोज़ कबल जैकमित लद्दाखी नामी एक शख्स ने ट्विटर पर एक वीडियो वायरल किया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि शूटिंग के दौरान गंदगी के ढेर रखे गए हैं जिससे माहौलियात को खतरा लाहक हो सकता है। करगिल के लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो की मुखालफत की है और इसे एक साजिश करार दिया। लोगों का कहना है कि आमिर खान शूटिंग के बाद गांव में आकर लोगों के साथ वक्त बिताते हैं और बच्चों के साथ खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, जो चंद लोगों को पसंद नहीं आ रही है। डीएम का कहना है कि इस सिलसिले में 2 मजिस्ट्रेटों को मुकर्रर किया गया है और बेबुनियाद वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई बात है नहीं, वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से क्लीननेस मेंटेन करके रखा है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो हो रहे हैं। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अभी शूटिंग चल रही है, ऐसा नहीं कि शूटिंग खत्म करके कचरा फैला के वो भाग गए हो। शूटिंग अभी भी चल रही है, 25 तारीख तक के शूटिंग का शेड्यूल है उनका। और हमारे जितने भी हमने यहाँ से डायरेक्शंस दिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोटोकॉल्स दिए हैं कोविड को लेके, क्लीननेस को लेके या फिर लोकल लोगों को चीट ना करने के लिए, वो सारे फॉलो कर रहे हैं। जो फोटोग्राफ्स है उसका अभी मैंने ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की है। वीडियो का तो उन्होंने कहा था कि ये करगिल का है, वाखा का है, बट अभी हमने ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की है। बट साथ ही में मैंने पुलिस के टीम को भी बोला कि एक बार ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी कहाँ के फोटोग्राफ्स है। और अगर हमें ऐसा पाया गया कि लोग झूठ फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं और अगर इसमें झूठी चीज होगी तो हम उस पर एक्शन भी लेंगे। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज झूठ ना फैलाएं। ऑब्वियसली अगर कोई सिचुएशन है, कोई चीज है जिसके लेके आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बात करनी है तो हम तक पहुंचाए, हम उस पर एक्शन लेंगे। बट प्लीज रूमर्स और झूठ ना फैलाएं और शूटिंग को पीसफुली होने दें। लेह में एलजी लद्दाख आके माथुर ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से मुताल्लिक एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। चमड़े और इससे मुंसलिक मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग में मौक़े और मेड इन लद्दाख मसनूआत की तरक्की का तस्वुर है।
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के इश्तराक से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। LG का कहना है कि हालिया दौर में चमड़े के इस्तेमाल से वाबस्ता मसनूआत से मुताल्लिक गलत तस्वुर पैदा किया जा रहा है। चमड़ा कदीम ज़माने से ही लद्दाखी सकाफत का हिस्सा रहा है। हालिया 2 महीनों के दौरान सयाहों की कसीर तादाद लद्दाख का दौरा कर रही है। कहा जा रहा है कि लद्दाख इंतजामी की जानिब से सिंधु फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और LHDC में अपोजिशन अरकान ने कोविड के तनाजुर में यह फेस्टिवल मुनक्किद न करने की मांग की है। आज तक सिंधु यात्रा होती थी, लेकिन एक ऐसे समय पर जब कोविड का थर्ड वेव आने वाला है, कोविड की थर्ड लहर आने वाली है, एक ऐसे समय पर कोविड का महाकुंभ करने का UT एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है। एक ऐसे समय पर यह बहुत ही अहम बनता है कि लद्दाख के सारे लोग एक होकर, एकत्रित होकर इसके खिलाफ आवाज उठाए। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव जब आया, लद्दाख का बुरा हाल हुआ। थर्ड वेव उससे भी खतरनाक, डेल्टा वेरिएंट, कहा जाता है 55% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है, ज्यादा जल्दी फैल जाता है अल्फा वेरिएंट से, और वो अल्फा वेरिएंट वुहान वेरिएंट से 50% खुद ज्यादा जल्दी फैलता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये अहम मसला है जिस पर हमें अपनी बात करनी चाहिए। बांडीपुरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से खवातीन वर्करों का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद, बांडीपुरा AKDDC मेंबर फिरदौसा अख्तर और दीगर लीडरान ने कन्वेंशन में शिरकत की। उस्मान मजीद का कहना है कि उनकी पार्टी ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अपने सारे नुकात रखे हैं। कुछ नुक्ते रखे, हमने कहा कि डिलिमिटेशन आप कर रहे हो, डिलिमिटेशन का एक ही होना चाहिए। एक सबसे बड़ा जो उसका पॉइंट है, तरीकाकार है, वो कि पॉपुलेशन के बुनियाद पे, आबादी के हिसाब से आप सीटें बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास इसके 83 सीट्स हैं, हमारे पास 87 थी, 4 तो चली गई लद्दाख और लेह और करगिल की। अपनी पार्टी की जानिब से बटा गुंडथराल में सीनियर लीडर व जिला सदर गुलाम मोहम्मद मीर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। जिला सदर ने कहा कि बाकी सियासी जमातों ने कश्मीरी लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी मजबूत हो रही है। आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का मुद्दा और मकसद है सच और सच्चाई की सियासत करना, और यहां से इफलास और गुर्बत का खात्मा करना, अमन, इस्तेहकाम और अपनी पार्टी को मजबूत करने का इरादा रखें। अगर हम तरक्की चाहते हैं, अगर हम इस्तेसाली अनासर से बचना चाहते हैं, अगर हम उन ठेकेदारों का कला कमा करना चाहते हैं, तो अपनी पार्टी को मजबूत बनाना होगा। जम्मू कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से सिंधपुरा ब्लॉक के हरिनारा में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में वर्करों ने शिरकत की। इजलास की सदारत पीपुल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन व इस्लामी स्कॉलर आगा सैयद अब्बास रिजवी ने की। हरिनारा के मशहूर सियासी वर्कर गुलाम हुसैन डार ने अपने वर्करों के साथ पीपुल्स जस्टिस फ्रंट में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें कश्मीर डिवीजन का सदर मुकर्रर किया गया। जम्मू कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा, मजहबी हम आहंगी, तामीर व तरक्की, सकाफत और सूफीज़म के लिए काम कर रहा है। हर धर्म के लोग आपस में एक फैमिली की तरह रह रहे थे। हम भी चाह रहे हैं कि वही बहार फिर दोबारा एक दफ़ा यहाँ आ जाए। वो तभी हो सकता है कि जब यहाँ पीस हो, यूनिटी हो, और सूफीज़म पे स्पेशली हमें काम करना पड़ेगा। मेरा काम है जो हमारे नौजवान, जो हमारे पढ़े लिखे बेचारे, जो जिनको दबाया जा रहा था, बाहर निकलने की वजह से वो अंदर ही बैठे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम घर घर, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव, हम हर एक इलाके में मैं जाऊं, और जितने भी हमारे नौजवान हैं जो अंदर दबे हुए हैं वो आगे आए, हमारी पार्टी का सपोर्ट करें, हम लोग उनके साथ हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद